class. This will go on YouTube also, so you can mute your video if you want. It doesn't matter to us. So, in my opinion, you can mute that video. So it will be, it will go on YouTube also. So let me start. What is your take on the paper, yesterday's paper? Anyone? What do you feel about that? Or Hello, sir. Namaste, sir. Namaste. Yes, sir. Most of So I the was questions just going were through the grammar syllabus. most of the questions were repeated only. Gaurav, we can't hear you properly. Hers. Most of the questions were repeated only, sir. There were a few new questions, but we require a lot of practice. We Practice. require a lot of writing practice in all the questions. So I said yesterday you called, so I said that you have to do your practice in daily basis. Earlier I said when we done writing, I said you have to write one or two essay or story daily. I don't think anyone following here. So this is the problem. You have to write at least a story on daily basis and go through the NCERT books and read from there. सबको कुछ ना कुछ डेली अभ्यास करना है, एटलीस्ट एंटायर जो क्लास का टाइम है, जब तक हमारा क्लास चल रहा है तब तक तो यू कैन डू दैट. So this is for next. Anyone? Dhanyasri, Samhita. Sir, I think the paper was a bit specific, like the grammar also, because they had asked what is prayashaha in Bahuvrihi Samasa. So I think it was a bit specific. Otherwise, it was fine only. It was you can say some tricky Because we usually do not prepare it on those lines. Yes. So, but we generally know how to give those type of answer. But let me discuss from here. And anything more, Samhita? no, sir. Overall, the grammar part was what we had discussed in class only. So grammar should not have been a problem. The thing is only those specific questions if we're talking about, sir. That's all. Oh, 1 to 2 questions. Otherwise, Yes, everything is okay. No. Okay. Next, anyone? Prakhar, Ajay, Ishan, Dhanyasri. Sir, what they said the same thing only. Then this time the second paper, first question, Raghuvamsham and Kalidasa is not asked. No? Then sorry, Raghuvamsham and Kumarasambhavam question is not there. Yeah, they didn't ask this year. They will ask next year. So when we go through syllabus, so they can ask anything, but they didn't ask. So it means they will ask in next year. So there is a rotation, and they ask generally what is the based upon previous year question. So like that. Next, anyone? Your take? Ajay, we can't hear you. I think you muted though. So let me start. I'll ask some of the question who have done Vyakaran and Sanskrit writing, and anyone can answer who have done the syllabus what we discussing. So first question, there are 8 question, and first question is compulsory, first and 5. So in first question, you have to write in Sanskrit only.
So what will be the answer here? First question A and 1. Question is अनुस्वारः ह व वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि लिख्यानि. Anuswara is Nasika. Ha is Kantha. And Va is Dantoshta. Next is Vachya Parivartan. We have to do. So, all of you, can you answer in written format also and send me in 1 or 2 days? It does, you Yes. don't have to write today. So previous year, in you have to. Next, अण प्रत्याहारांतर्गता वर्णाः लेखनीय and अणुदिश सवर्ण से चा प्रत्यय based upon अणुदिश सवर्ण से चा प्रत्यय. So we discuss when we go through only अणुदिश सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र, we have to go in अण प्रत्याहार, not a eu. From where to where? We have to in अण प्रत्याहार. To learn. Learn. Only in this sutra. That's why I said when we discussed that they will ask only in this. If they ask generally in Ana Pratyahar, you have to write Arthu, you have to write only EU. Okay. So this one is a bit different. Mama Mitrani Gramam Gachanti. So Mitrani Gramam Gachanti. You have to change Vachya Parivartan. You have to do Vachya Parivartan here. What should be? Mama Mitraः Vachya Parivartan. मम मित्रैः ग्रामः गम्यते. गम्यते. So he has जो जिन्होंने ये लिखा है, क्या इनका आंसर सही है? उन्होंने साथ में साइड में लिखा हुआ है नोट. वही चीज एग्जाम में भी लिखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना. व्हाट ही हैड रिटन मम मित्रैः ग्रामं गम्यन्ते. Grammar should be in Prathama. वो गलत हो जाएगा ना. अब वो आपने लिखा भी और आंसर गलत भी है. तो इस तरीके से एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि आप उस पर लगा रहे हो, फिर थोड़ा सा एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. पहले ही क्वेश्चन में आपने क्या किया है, अगर नहीं आ रहा है तो 1 नंबर का है, कोई बात नहीं, स्किप कर लो. मगर गलत मत लिखिए. इंप्रेशन आप क्या कर रहे हो, पूरे पेपर के लिए क्या दे रहे हो कि मैं सुटेबल नहीं हूं, मुझे आता ही नहीं, सिंपल चीजें नहीं आती है ना. ये लिखने का ये अर्थ था कि जो उन्होंने लिखा हुआ था, जो पेपर दिए, ये तात्पर्य है कि यहाँ पर आपकी गलती शुरू में ही, वो भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में, जो कि बड़े ही सिंपल नहीं आता है, 1 मार्क्स को आप स्किप कर सकते हैं. मगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत जो कि रूल्स जब प्रॉपरली आ रहा है then you can write. सब क्या गलत है? क्या गलत है? सभी लोग तो बता रहे हैं कि गलत है, आप ही बताइए. मम मित्रैः ग्रामं गम्यन्ते. Is it right? When we change mama mitrani gramam gachanti to atmanepada and o, so what will be the changes? Mama mitraihi gramam gamyante. Is it correct? First, I am asking you. मुझे सही लग रहा है. क्या हो रहा है? मुझे सही लग रहा है. Dhanasri Samhita Prakhar. What will be the answer? It has to be based on small work. It should be Gram is in pulling or napusakling? pulling shabd. पुल्लिंग सर.
Okay. नपुंसकलिंग ना? Okay. Prathama. So we learn Napusaklinger. Grammar. Grammar, we learn Napusaklinger. Grammar, maybe heard about grammar. Have you heard grammar? No? Grammar. No? So first, and according to Prathama Vibhakti, dhatu should be there. So if Prathama Vibhakti is in a question, what we have to write? Gamyate or Gamyante? Yeah, it's a easy question. We don't have to discuss on this. Meaning is that lack of practice. So you have to do more practice. क्योंकि इसी क्लास में हुआ है, सब लोग किए हैं और सब लोग जानते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन, प्रयोगे समृद्ध प्रयत्नवान स्वरः का. प्रयोगे समृद्ध सॉर्ट ऑफ सर ह्रस्व अ. ह्रस्व अ. उसका प्रयोग जो है समृद्ध में. प्रकाशेन तायते. वाच्य परिवर्तन. Sir, so here only if you write, it is enough. Here only if you write only it is enough answer. Yes. Or in sentence. Yes. Only. You can write sentence in sentence also. And say prayoge samrit prayatna swara bhavati, like that. In single inverted. Got it? Yes, sir. So prakashajena tayate, you can be panchagangam vigraha purvakam samasanam. Panchanam Panchagangam. Samaharaha Avyayabhava Samasa. द्विगु समास. Divu. So what we learn in Avyayabhava, नदी स्त्राख्यो. स्त्री प्रमाणीयस्य सह. बहुव्रीहि समास. वही तो है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? स्त्री प्रमाण. स्त्री प्रमाण. Sri Pramana. स्त्री क्या होता है? 3-4 महीने हम लोग पढ़ चुके हैं. स्त्री प्रमाण है सर. नहीं, ठीक है. मैं ऐसे ही. स्त्री प्रमाण है ना, स्त्री प्रमाण है ना. व्हाट इज स्त्री प्रमाण? वी आर डूइंग लाइक स्त्री को कहते हैं ना. नो, प्रोनाउंसिएट राइटली ना. संस्कृत संस्कृत पाणिनि मुनि ये सब लोग लिख करके थक गए कि ऐसे ही उच्चारण करना है, ऐसे को उच्चारण. और हम लोग आकर के अपने हिसाब से उसको स्त्री प्रमाण. तो अब टी संज्ञा वी डिस्कस अबाउट. सूत्र ने एनीवन? टी संज्ञा. Where we do टी संज्ञा and what is the sutra? Acho Antyadi T. षण्णवति संधि विच्छेद. षड्जोर्णवति. What from which sutra? षण्णवति षण्णगरय. Sharnam, Sharnavati, Sharnagar. There are 3. What is the meaning of Sharnavati? What is the meaning of this Sharnavati? 96. 96. No?
So you thought that we will I will discuss only this one in that. We are not going to discuss. We are asking you that what should be the answer here, because we learn in the course of time. Anyone? Certain number two, बात करना जो है, We heard about Napadanta, Tornam, and so. Yes, sir. Where you see Sarnavati? In which sutra? मुझे दो लग रहा है सर. अच्छा, दो लग रहा है. बहुत अच्छे. षट जोड़ नवती तो I am not asking Sandhi Vicheda. I am asking Sutra name. Shad plus Navati you can write. That is simplest. Shad plus Navati. So it doesn't matter because we written in detail. Just asking Sutra name. यरवन अनुनासिक अनुनासिक होगा, उससे ड अण में बदलेगा. हाँ, वो तो सेकेंडरी हो गया ना. पहले जो है शरणाम, शरणवती, शरणगरया, इन तीनों में हमें तो कौन सी संधि हुई है ये देखना है ना. अनानवति गरिणा इति वक्तव्यम्. अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम. इति वाच्यम्. This one is Vartik. Vartik, yes. Prakar said. So you can write here. Ahoisa. Ahoisa. Somebody speak. Ahoisa. In which sandhi you will see Ahoisa? सर इसका विच्छेद अहो ईसा ही होगा क्या? तो अब सोचिए, हम लोग सारा कुछ किए हुए हैं और अभी रिसेंटली हुआ, अभी आप भूल गए. इसका मतलब रिवीजन खत्म हो गया. अब क्या करना है? अजय बाबू. भूल गए होंगे. अब सोच रहे होंगे मन में एक बार और स्टार्ट कर ही लेते हैं. तो मजबूरी हो जाएगी. बताइए, अब आपके पास दिसंबर तक का टाइम, जो करना है कर ली. I can't hear you. You're muted. Your sound is not. Let me. Sir, mic problem. Okay. We hear you. We hear you. Okay, no problem. So you have to go through and write here. Next sutra ullik रामेण बाणेन हतो बाली. सूत्रोल्लेख पूर्वकम विभक्ति प्रयोग. So see, I said there will be two answers. When underline in Ramayana and underline in Baden. So here they ask for Ramayana, not Baden. So you have to write accordingly. कई बार क्या होता है, मैंने देखा है लोगों को, मैंने रामायण बाणेन हतो बाली पूछे कि कहीं पे, कई बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर. तो मैं उसमें टेस्ट में भी पूछता है, तो देखे नहीं कि रामायण बाणेन हतो बाली, दे डिडंट सी अंडरलाइन वर्ड, और जस्ट जो मन में आया लिखते द्वितीया विभक्ति क्या होता है. सो नेक्स्ट वन इज हरि वैकुंठम अधिशेष. तृतीय इन रामायण बाणेन हतो बाली, विच सूत्र?
कर्तृकरणयोः स्तुते नेक्स्ट हरिवैकुण्ठमक्षे आधारे सप्तमी आधारे अधिशिक्षासु अधिसिंहस्थासां कर्म कर्म संज्ञा वी हैव टू डू कर्म संज्ञा ना आधार की आधारस्य कर्म संज्ञा सुधाम सुधाम शिरनिधिं मथनाति सुधाम शिरनिधिं मथनाति अकथितं च एतोदकस्य उपस्मृते we learn in षष्ठी षष्ठी अंतिके वनस्य अंतिके से षष्ठी वनस्य अंतिके माया वन के पास नहीं जाना चाहिए you don't have to go. Next उपदेश जन्नासिकित you have to do in 3 to 4 lines we learn and we written. What should be the answer here? उपदेश जन्नासिकित what this sutra does. it's संज्ञा संज्ञा sir. अच की स्वरों की we learn in स्वर संज्ञा. पूर्वत्र सिद्धम we discuss about पूर्वत्र सिद्धम. This is related to that Manoratha example also. Rory and when we done Asisha. So Purvatra se. What is the definition here? Anyone? तो सर सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र उसके बाद वाले के लिए असिद्ध हो जाते. सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धांत. नेक्स्ट वन अपवर्गे तृतीय. एनी एग्जांपल? अपवर्गे फल प्राप्ति. मासेन आरोग्यः लब्धः. वेरी नाइस. कर्तिकरणे कृताबलम. तृतीय तत्पुरुष समास. कर्ति कर्ता और करण में बहुल होकर के समास होगा. तद्धितो षष्ठी विभक्ति सर that कृता शब्दस्य योगे षष्ठी विभक्ति भवति. कर्तिकरणे when we कर्ता and करण we do not कर्ता and करण we have to go in तृतीया. We कर्तयोः तृतीया we heard. Yeah, yes. So this one is in samasa, so it's also in Tritiya Tattvas. Okay. So you can check from there. It's not Sashti, I think, if I remember correctly. Okay. So next one is Tadhitarthottar Pada Samaharesha. Samahara में तद्धित अर्थ उत्तर पद. Any example? No. Next they ask you have to write all these answer. I will not saying answer. You have to go through the samasa and so write that and send it to me. Or in एक दो लोग तो कल लिख करके भेज भी दिए. कौन लोग आए हैं क्या? तो एक शेष स्वरूपम विवेचनीयम. एक शेष बंध. What should be what will be the definition of एक शेष बंध? Whom we will say this is एक शेष बंध. In एक शेष बंध what we do? एक शेष में क्या होता है? एक बचा रहता है शब्द. बहुत सारे शब्द होते हैं उसमें एक बचा रहता है और उस पे फिर विभक्ति लगाई जाती है. We can use accordingly. So maybe you heard about. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि समास को डिफाइन करना है
आफ्टर समास, इन द्वंद्व समास, द्वंद्व को डिफाइन करना है, इतर इतर द्वंद्व, and in that एक शेष them, and you put some example like mata cha pita cha, so pita will be left, and we will because we are using dvachan, so we put dvachan there, and pitaro. When we say pitaro, meaning is like mata cha pita cha. And when we say putra, so what should be the ekashesh here, vigrah here, लौकिक विग्रह. When we say putra, see putra, putri cha putrascha, putri cha putrascha. Again, if I say Rama, what will be the Loki Vigrah here? Rama. रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च. नहीं थी. रामश्च 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 बहुवचन, राम बहुवचन, रामा, राम रामौ रामा. You know ना? Rama means here there are many Ramas. Ramaha gachanti. What is the meaning of Ramaha gachanti? Many Ramas are going. Correct. Right, na? Yeah. So many Ramas. Ekashesh, then see, when we know the Bahuvachan meaning, we are using this is called Ekashesh, na? And there is a example Yuvanav, as like Pitarav, as like Putrav, Yuvanav. So what will be the Loki Vigrah? Yuvacha, Yuvaticha. If we say Hansav, दो हंसों का जोड़ा, about, तो Hansav. So what will be the Loki Vigrah? Hamsa cha, hamsi cha. And Swasuram? ससुर जब कहते हैं ना, माता पिता दोनों आ जाए. ससुरुच, ससुरश्च, ससुरुच, ससुरश्च. And when we say भ्रातरम, आप यूज कर सकते हैं भ्राता च you can use, but what is the, when we do only particular भ्रातरम, so what will be the answer? भ्राता च, Agni cha or Swasa cha. Swasa, Agni cha, Agni also you can use. Got it? So give some examples and define those example as Loki Vigraha and Aloki Vigraha if you want to, and you will write. And here, triad, you will see generally in Samaj that triad word is there. So what is the triad meaning here? In question they ask like triad pada padasya mahatvam pratipatita. So why they use triad? We saw that you can write Harina Trata, Haritrata. It doesn't. और आपने देखा होगा पीतांबर पीतांबरम. प्रायण का मतलब होता है कि प्रायः, जनरली. तो इन समाज यू विल सी जनरली वर्ड प्रायण पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समाज. तो आपको यह जनरल कॉन्सेप्ट आपको समझाना है कि प्रायः मींस देयर इज ऑप्शन. Generally you can see but there are many exceptions. जैसे अभी पंचगंगम में आपने क्या किया, प्रायः क्या होगा, संख्या पूर्व
प्रायः, बट क्या होगा, नहीं ये भी समास हो जाता। इसीलिए आप समास जब पढ़ रहे होंगे ना, बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हो, होता है जब शुरू होता है ये कंफ्यूजन, वो उधर भी आ सकता है। एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड ना कई जगह आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए तो 10 मार्क्स में आपको लिखना है। पहले डिफाइन करना है समास के स्वरूप क्या है, और इस व्हाट इज समास हियर, and why they use prior. You can say that prior Purupad Pradhana is also written here, and in many sutra in definition you will see prior. So you have to decide. Prior mean it's like general point of एक्सेप्शन आपको समाज में बहुत सारे देखे, इसलिए प्रायः का एग्जाम्पल दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक भाषा तिङंत प्रयोग वैशिष्ट्यम। सो मैं भाषा विज्ञान वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे आस्क्ड नाम रूप एंड उसके अकॉर्डिंग पहले ही पूछा हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन यू कैन से, एंड दे आस्क्ड अबाउट अर्थ विकासस्य दिशः विपरीत सेमेंटिक्स, अर्थ विकास की दिशा ईशान। जो इवनिंग वाले में है वो लोग बोलेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में अभी हुआ नहीं है, तो आई कैन आस्क हम दो। देखिए, अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशा दोनों डिफरेंट होते हैं। मैं बताया था आपको इन इवनिंग वाले क्लास में, तो उसमें क्या है, अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशा दोनों डिफरेंट होते हैं। तो दिशा क्या होगी, जस्ट वन मार्क। कैन यू रिमेम्बर? नहीं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थ का विस्तार होना, प्रवीण शब्द, वी डिस्कस अबाउट प्रवीण शब्द ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रवीण? जो अच्छी तरह वीणा बजाता हो, बट ऐसे हम जनरली उसको यूज कहाँ कर रहे हैं, अर्थ का विस्तार, दिस इज द वे, दिशा है ना। तो अर्थ विकास की दिशा और कारण दोनों डिफरेंट है। तो उसी तरीके से तिल अर्थ संकोच, तिल तिल शब्द पता हाँ था। तेल हो गया, तेल हो गया, हाँ? अर्थ संकोच का हो जाना, है ना? तो मृग शब्द को जानवर बोलते थे। अर्थादेश का हो जाना, जैसे अर्थादेश का मतलब होता है, जैसे असुर शब्द जो है, आप लोग पहले देवता का वाचक था, फिर बाद में क्या है, दैत्य का वाचक हो गया, है ना। तो इजी रहा है, उसी को आपको इफ आई रिमेम्बर दे आस्क अर्थ विकास फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट संस्कृत कथा साहित्यम अवलंबन, we will discuss in morning batch, in evening batch katha sahitya we done with कादम्बरी and कादम्बरी is a कथा और आख्यायिका। कादम्बरी कथा है कि आख्यायिका है? अच्छा, अच्छा, चलिए कम से कम ऐसा नहीं किया कि इसमें भी बता देते आख्यायिका है पूरा पढ़ने के बाद। उसका तो नाम ही कादम्बरी कथा बोलते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कथा एंड आख्यायिका, यू हैव टू, दे आस्क जनरली ना इन प्रीवियस ईयर। सो नेक्स्ट वन इज कालिदासाद अपरस्य वाणी प्रियांक पालीव विमर्द हृदया न कालिदासाद अपरस्य वाणी, न कालिदासाद अपरस्य वाणी, यानी कि कालिदास के अलावा किसी अन्य की वाणी नहीं हो सकती। कैसा? प्रियांक पाली व विमर्द हृदया, जब नायक नायिका से मिलता है, नायक नायिका के साथ में होता है, तो वह जो वर्णन, जो स्वरूप है,
So this is a quote. So you have to do the importance of Kalidas. This answer will be related to importance of Kalidas. How he had used Sringar Ras and Vipralam. Next one, discuss the Ramayana as a source book. आप अभी तक कौन सी ऐसी बुक पढ़े हैं in morning batch and evening batch, in both I'm asking, which is related to which inception start from Ramayana? उत्तर रामचरित तो उपजीव्य मीन्स द सोर्स बुक. तो जनरली रामायण और महाभारत को हमारे यहाँ उपजीव्य कहा जाता है. They asked previously, so we don't have. संस्कृत मुक्तक काव्य नाम, एक कोई मुक्तक का एग्जाम्पल दे सकते हैं? They asking 10 marks. Repeated question. मुक्तक. मुक्तक का अर्थ क्या होता है? मोतियों की माला. सारी मोती अलग अलग होती हैं और सब मोती. नीति शतक इज द एग्जाम्पल ऑफ मुक्तक. मुझे इस तरीके से बताना पड़ेगा जैसे नॉट एक्सेप्टेबल. इवन आपसे तो उम्मीद मैं नहीं कर सकता. नेक्स्ट, मुझे पूरा पता है कि रससूत्र आप नहीं बताएंगे. कोई है ऐसा भी? ये ऐसा इसने पहली बार पूछा है. रससूत्रम उद्धृत्य विस्तरेण व्याख्यायितम्. What is Rasasutra? If we discuss, if you were earlier in Kavya Shastra, in विभावान very nice. विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति. इसको रससूत्र भरत मुनि, इसको रससूत्र कहते हैं. इस पे बहुत सारे स्कूल बन गए. बहुत अच्छा. मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोग नहीं उत्तर देंगे, बट कुछ लोग रससूत्र को वाक्य रसात्मकम काव्यम लिख देंगे. मैंने देखा, मैंने कल पूछा कि रससूत्र क्या है, वो वाक्य रसात्मकम काव्यम. तो जो इसके उत्तर, खैर लोग इसका उत्तर दिए ना, फर्स्ट सेकंड दे डन फर्स्ट सेकंड एंड रिटन इन सेकंड सेक्शन. Generally, you will not see anyone who had written fourth number question in this year paper. If you see, they didn't answer this. I just asked in curiosity. So Ramayana से आदि काव्यत्व. Next one is first heading. पुरा कवीनां गणना प्रसंगे. पुरा कवीनां is related to वाल्मीकि. कालिदास. अच्छा, ये कालिदास है. तो ये किससे, आदि काव्य का रिलेशन किससे है? मां निषाद प्रतिष्ठित. हाँ, मानिश. बोलने इतना इजी है. आपको पता है कि उसी को डिस्क्राइब करते हुए आपको डेफिनेशन देते हैं महाकाव्य की श्रेणी में. उससे पहले जो ग्रंथ लिखे गए ना, दे वर इन वेद और आरण्यक उपनिषद. They were not related to general view of Sanskrit, or not related to any story, original story or like that. They were mantra or aranya or Upanishad or like that, shastras. So this fifth number question, fifth number comes. You have to write in Sanskrit. There are 5 questions. You have to write all those 5 questions, 10 marks. वेदारंभ संस्कार से स्वरूपम, you will go through, you will write easily. भारतीय ज्ञान परंपरायाम आर्यभट्ट, you know the easy one. वर्ण और आश्रम में संबंध, वर्णाश्रम यो संबंधम विवरण. Relation between
Varna system and ashram system. कोई कोरिलेशन है? वर्ण क्या है और आश्रम क्या है? व्हाट इज वर्णा एंड व्हाट इज आश्रम? सर चारों आश्रम को लिख करके, चारों आश्रम में चारों वर्ण का क्या क्या रोल रहता है, उसी तरह से लिखेंगे बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आश्रमों में ज्येष्ठ, नेक्स्ट वन, आश्रमेषु ज्येष्ठस्य आश्रमस्य महत्वं प्रतिपादय। तो ज्येष्ठ आश्रम ये ब्रह्मचर्य होगा या संन्यास? गृहस्थ। आंसर आ गए प्रकार? आ गया ना? गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है हर जगह। आश्रमेषु गृहस्थ। देखिए, ब्रह्मचारी, इस प्रकृति का, इस नेचर का काम क्या है? रिप्रोडक्शन। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन ब्रह्मचर्य नहीं कर सकता, सन्यासी नहीं कर सकता, प्रकृति का नेचर। तो आप इवन जीरो से स्टार्ट कीजिए और एंड तक जाइए, इस पूरी पृथ्वी को चलने के लिए गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है। तो यदि आपने गृहस्थ आश्रम नहीं फॉलो किया तो 16 संस्कार आपके कंप्लीट नहीं होंगे। केवल गृहस्थ आश्रम वाला ही 16 संस्कार को कंप्लीट कर पाता है ना? नहीं, विवाह संस्कार होगा ही, न सन्यासी का होगा न ब्रह्मचारी का होगा। तो दश गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, ये सारी चीजें तो है, पर संस्कारों के साथ में जो गृहस्थ आश्रम है वो क्या है? मानव जीवन की पूर्णता का आश्रम माना जाता है। यह परहित के लिए, ये तो जो विद्यार्थी होते हैं ये अपने ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, जो सन्यासी होते हैं अपने मोक्ष के लिए पढ़ रहे हैं, मगर जो गृहस्थ आश्रम होते हैं परहित के लिए। अगर वो भाई, सिख धर्म में, हिंदू धर्म में ये मान्यता पहले थी कि जो प्रथम पुत्र होगा वो सिख बने, उठा के दे दिए। गृहस्थी तो देता है, तभी तो ये सन्यासी बनते हैं, एक से एक मंडलेश्वर। और वो तो गृहस्थ का ही बड़ा, इसलिए बड़ा सबसे श्रेष्ठ के रूप में, तो बेरियर आश्रम के रूप में उसको डिस्कस। ऐसे आप शुरू में आप ये जरूर बताइएगा कि ऐसे कोई तुलना उस तरीके से नहीं है, तुलना नहीं की जा सकती। हर आश्रम का अपना एक इम्पोर्टेंस है, मगर जब हम देखते हैं होलिस्टिक वे में, तो लोगों का मानना है, ज्यादातर लोगों का मानना है कि गृहस्थ आश्रम एक, तो ऐसे आपको चाहिए डिप्लोमेटिक वे में, न कि आप ना ना गृहस्थ आश्रम ही सब कुछ अच्छा है। ऐसा भित्ति चित्रकला, वॉल पेंटिंग, यू कैन स्टार्ट विद Rimbedka, Sthita Pragya, Srimad Bhagavad Gita, were done in Darshan, philosophy. Sthita Pragya. What is? They, Arjuna asked, Sthita Pragya से क्या भाषा? स्थित प्रज्ञा किसे कहते हैं? धी कौन है ना? द्वितीय अध्याय में डिस्कस। We have also answer also. All the what we discussed, we have answer. I had given it. बस इतना आपको करना था कि आपको रिवाइज करना था और उसको लिखना। ऐसी बता दीजिए व्हाट इज द whom we can say स्थित प्रज्ञा। Anyone? सर किसी भी कंडीशन में, सुख में, दुख में, शोक में, या इसमें वो सुख दुखे समय धृत्वा लाभा लाभो जयाजय। सांख्यम आश्रित गुणत्रयम्। प्रीति और प्रीति और विषाद। तो गुण क्या हुए ये तो? सतरजतम। they asked Shankar Bhashyam avalambya Shastra Yonitvat Sutram Vipra. Shastra Yonit. They ask about Shastra Yonit. And they, from where they are asking? From Shankar Bhashya.
जो ब्रह्मसूत्र पे उन्होंने लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है. सो आई विल से in UPSC they ask this type of question maybe in 10 marks. This is beyond your limit, so don't go. You have to do all these questions. Don't go with this type of question, because you have option. You can choose 8 number question also. You can choose 7 number question. You don't have to, because you know 7 number and 8 number also. So when they ask these type of question, अगर शांकर भाष्य करना शुरू करेंगे, we can do general point of view, but not as a शास्त्र में. So जब हम ब्रह्मसूत्र को देखते हैं तो चैप्टर 1 आता है सामान्य अधिकरण, सामान्य अध्याय विषय. उसी में टॉपिक 3 जो आती है, टॉपिक 3 से रिलेटेड विषय अबाउट शास्त्र योनित्वाद, उसका अधिकरण चैप्टर्स नेम शास्त्र योनि. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शास्त्र योनित्वाद? द शास्त्र, यू नो, स्क्रिप्चर, शास्त्र योनित्वाद. So the scripture being the source of right knowledge. The scripture being the source of right knowledge. Shastra means the scripture. And Yonitvad means being the source of the means of the right knowledge. So जो स्क्रिप्शन है, स्क्रिप्चर है, उसके इंपॉर्टेंस को बताना. जो शास्त्र है उनके महत्व को, क्यों हमारे पास में ये शास्त्र होने चाहिए जो कि पहले लिखे गए, कोई भी शास्त्र, इवन अर्थशास्त्री कैन काउंट ऑन. So they ask first time as UPSC they ask this type of question 50 marks. So उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है. Just do what we discussed and you can skip that. You have option, many option to write another question. क्या होगा कि ये जो है ना स्थित प्रज्ञा गुणत्रय ये आकर्षित करेगा. आओ मेरे पास में मेरा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. हमारे पास ऑप्शन है, यू कैन राइट 7 and 8. मेरा वाला 6 नंबर है, अटेम्प्ट करो. अब सी नंबर में आपको 3rd नंबर क्वेश्चन हो, क्योंकि आपने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा. तो आस जल्दी 10 मार्क्स ना. मैं पहले भी कहता हूँ कि यू कैन 10 से 15 मार्क्स आप यूपीएससी के ऊपर छोड़ा. इन टोटल आप अगर देखें पेपर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, तो डिटेल में उस तरीके से पढ़ने की जरूरत है. मेरा ये मानना है, बहुत सारा डीप जाने की आवश्यकता नहीं, उससे एग्जाम का कोई रिलेशन नहीं, और आपकी मेहनत आप कहीं अन्य उसको बढ़िया से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, योग शास्त्रोक्तानि चित्त परिकर्माणि. योग शास्त्रोक्तानि चित्त परिकर्माणि. This is also from a detailed question. चित्त परिकर्मा. Can anyone? अभी क्या हुआ, इसको जो है पतंजलि के योग सूत्र से पूछ लो, चित्र परिक्रम क्या है. दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट बुक, ओरिजिनल टेक्स्ट. पहले आप भाष्य को पढ़े, अब आपको इसको पढ़ना है. सो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से, मैं ओरिजिनल टेक्स्ट बुक यानी डिटेल है, अब पता चला कि आप सूत्रों को पढ़ रहे हो, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है. चित्त परिक्रम. चित्त परिक्रम, चित्त परिक्रमा क्या होता है? कोई इसको आप कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे आप कह सकते हैं आपका जो चित्त है उसका परिक्रम क्या हो. आपके हमने वी डिस्कस अबाउट चित्त भूमि. तो अगर कहते हैं ना कि अगर आपका मन पवित्र है तो आपका कर्म पवित्र होगा. यदि आपका मन पवित्र है तो आपका कर्म भी पवित्र होगा. तो 4 प्रकार से जो है चित्र को आप 1 मिनट मेरा
तो चित्र भरी जो आपकी चित्र है वह कैसी होनी चाहिए, वो मैत्री से मित्रता का भाव होता है, या फिर आपका प्रेम का भाव है, यदि आप या किसी को उपेक्षित कर रहे हैं या उपेक्षित फील कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर्ष, करुण, मैत्री और उपेक्षा, ये 4 भेद आपको परिक्रमा के देखने को मिलेंगे, और उसका स्वरूप चित्त से रिलेटेड है। यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट तभी आपका सही हो पाएगा जब आपका चित्त इन चारों में सबसे बेहतर कंडीशन। तो अच्छा, ये इसका जो डिस्कशन है, ये जो चित्त परिक्रम है, ये केवल योग में ही नहीं डिस्कस, ये आपको इन maybe you heard of it in Ajay and Samhita, maybe you heard about in Ayurveda also. Yes, sir. How Chitta why Parikar. treatment has to be done? Yeah, Maitri Karunya Marteshu, that comes. Yes. हाँ? Yes. तो आयुर्वेद से रिलेटेड उसका ज्यादा महत्व है, उसमें इसमें योग सूत्र में किया हुआ है। तो बौद्ध दर्शनी परिधानी चात्वारि आर्य सत्यानि, दुख है, फर्स्ट इज दुख, दुख चार समुदाय निरोध। दुख समुदाय, समुदाय ना समुदाय, समुदाय ना वैशेषिक, यू नो, तो वैशेषिक दर्शन विशेष है सारे लोग। एंड 8 number question you have to write in Sanskrit. You have to give see they ask प्रत्येकम उत्तर 3 to 4 पंक्ति भी भवेत, सभी के उत्तर जो है 3 से 4 पंक्तियों में। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोई भी आंसर लिखने से पहले अगर आपको नहीं पता है कि 3 से 4 लाइन में कैसे लिखते हैं, तो पहले मुझे फोन करें, पहले डिस्कस कर लीजिए कैसे लिखा जाता है। मैं उसका आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि अच्छा ये वाला है, उसके बाद तुरंत नहीं तो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। पृथ्वी इजी वन, फर्स्ट एंड सेकंड जो इजी दे आस्क इजी वन। पृथ्वी ऐसा माता अस्मदादि नाम, हमारे सबकी पृथ्वी जो है माता है। पृथ्वी विना जीवन से कल्पना अभी कर्तुम न शक्यते, सो का माता अस्मदादि नाम। सी, तो यू कैन राइट पृथ्वी माता अस्मदादि नाम, 1 मार्क्स क्वेश्चन। मगर क्या होगा, दे आस्क यू हैव टू राइट इन 3 and 4 लाइन। तो ये गलती न करें कि आपने क्या किया, का माता अस्मदादि नाम, यू हैव रिटन पृथ्वी माता अस्मदादि नाम। आपने देखा अच्छा पृथ्वी माता, बस हो गया हमारा काम। इतना इजी तो यूपीएससी में कभी पूछता ही नहीं है, 1 लाइन काम 5 नंबर मिल गए। आपको लिखना है 3 से 4 लाइन, you have to write in 3 to 4 लाइन। So how you have to write, or how I uploaded in YouTube also. So you can see from there on some passage discussion or like that if you search in our channel. And after that you attempt this type of question. So don't write 1 line. This is not the answer because they ask 3 to 4 line. अब ये होगा कि अब कहेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे कि इसमें कैसे 3 से 4 लाइन में आंसर दिया जा सकता है। आर्टिकल 12 कितने लाइन में लिखा है, कितने लाइन में लिखा है, 5 लाइन में। अगर वो 2 मार्क्स में इफ दे आस्क राइट अबाउट आर्टिकल 10, what will you do in 2 marks and in 20 marks or 10 marks? ये आंसर ना, आंसर तो वहां देते ही हैं। तो आप समझ लीजिए सिने इजी वन यू कैन आंसर, बस उसको देखने के बाद ही आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई मना नहीं, मत यूपीएससी इन एग्जाम यू हैव टू गो प्रॉपर। नेक्स्ट दे आस्क contemporary issue, Sri Annam Swasthya, Sri, maybe you heard about Sri Anna Yojana, मिलेट्स के लिए सही है,
तो मिलेट जो कि अभी इम्पोर्टेंट चल ही रहा है, स्त्री अन्न स्वास्थ्य से पोषण से दृष्टिया अति महत्वपूर्ण अस्ति। सो सुपर फूड के रूप में इसको कहा जाता है, और ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। यवन आलह, ज्वार, बाजरा, रागी, प्रजान, प्रियंगु, कंगु, कोद्रव, अणुश्च, कोदो, कुटकी। कोद्रव मीन्स कोदो। तो कौन खाया कोदो? खाया नहीं खाया? यूपी बिहार में तो खाते थे, आप पता है। सावा खाए, मैं भी हर्ड अबाउट सावा। एक सामक होता है, वो व्रत में खाते। हाँ वही वही, सावा का चावल कहते हैं ना, हाँ। सावा को, सावा का चावल, उसको व्रत में खाते। वो एक्चुअली पानी में उत्पन्न होता है, खेत में नहीं बनता। पानी के जो जहाँ बहुत कम पानी होता है ना, तो उसमें जो उत्पन्न, वो सावा 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 का चावल में। तो ये क्या होता है, अब उसकी जगह, ये चावल की जगह वो खाइए, फाइबर है, आयरन है, इसमें कॉन्टिपेशन नहीं होगा, एनीमिया नहीं होगी, एसिडिटी को रिमूव करेगा। और प्लस जो निगेटिव्स है, जो जनरल इस चावल से क्या हो जाएगा, जो जनरल चावल, डायबिटीज। ये जो चावल और गेहूं आप यूज करते हैं, मेन सोर्स है डायबिटीज के। उसको ये नहीं होता है, आप सामक चावल खाइए, डायबिटीज प्रॉब्लम। तो इसीलिए सुपर फूड के रूप में इन सब को किया जाता है। अब बताइए, जो कि आज से 40 साल पहले ये एक्चुअली समस्या भारत में आई, ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण दो ही चीज पे ज्यादा फोकस हो गया। बाकी जो साइड साइड उस पे ये नहीं कि उस पे कुछ वैरायटी लाया जाए, कुछ इम्प्रूव किया जाए। और मुझे याद है जब हम बचपन में थे, तो सावा और कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, बाजरा अभी भी लोग खाते हैं हरियाणा और क्षेत्रों में। ज्वार जिसे कहते हैं, ज्वार में कोई ग्लूटेन नहीं होता, प्रोटीन बढ़िया मिलता है। डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनको ज्वार खाने के लिए कहा जाता है, वो रोटी खाना ही मना है, ये जो सिंपल गेहूं की रोटी होती है। तो इसके बारे में इसमें बड़ा इजीली क्वेश्चन दे आस्क, कैन यू डू दैट? श्री अन्न, श्री अन्न स्वास्थ्य पोषण योजना। नेक्स्ट, in second paper, Prakriti Madhura Bharvi Gira, we discuss about Prakriti Madhura. These are repetitive questions or related to our study, general study. So Meghe Mage Gatam Bhaya, Banochishtam Jagat Sarvan. I said that Naisadi Charitam mein they ask generally some type of question. So importance of Naisadi Charitam. Dandina Gadya Saundaryam. They didn't ask Gandhina Padalalitya. बस चेंज कर लिया, गद्य सौंदर्य। गद्य सौंदर्य सेम उदाहरण के साथ में वही पद ला लेते, वी कैन आल्सो से संभूति असंभूति, एनीवन, ईशावास्योपनिषद में संभूति असंभूति। व्हाट इज संभूति एंड असंभूति? कोई था इसमें? और कौन है? सबीना है, धनश्री, मे बी Ishan is the only person and Ajay is the only person who were in darshan class, and maybe Prakhar sometime. एक तो रेगुलर क्लास ही नहीं लेते, अब समस्या आ रही है। संभूत्या मृत्युम तीर्थवा, असंभूत्या क्या हो? अमृतम अश्नुति। तो वही दूसरा पैरा है, ज्ञान कर्म भक्ति, द्वितीय अध्याय, ज्ञान कर्म भक्ति गीतायां प्रतिपादिता। Importance of Kotli Shastra in today's scenario we discussed in last class, in evening class. कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, राजनीतिक दशा,
previous year. Uttar Ramcharite Bhavbhuti, previous year. All these questions asked previous year. Vishnu Sharma Panchatattva important, previous year. Varna Vishyam Vaishyadyena, Varna Vishya means what is the story and chapters. So you have to Sanskrit Mahakavya Palhada Virchit Rajtarangana Varna Vishya. What they describe. And Jayadev Praditam Gita Govindam. Gita Govind importance. Next, in second section, we don't have to discuss about, but this is they ask generally from the 30 slok or whatever the syllabus. So repeat, they repeat every 2 or 3 years. So Tyagaya Samritan, I am just saying the Grantha name here. Tyagaya Samritanam Satyaya Mitabhashina, just say Vijigushunam Prajaye Krihmet. 16 qualities are Prabhus. Raghunaman 9th number slok. I am going to describe about Raghus. Tanuvag Vibhos in Kalidasas. I am very little in knowledge. Tad Gunai Karnam Abatya Chabalaya Prajunda. So in round of words, both are Anantaratna Pravashi Asya Himam Na Saubhagya Vilopi Jatam Eko hi dosho. एक ही दोष है किसका? हिमालय का। एक वो ही दोष हो निमज्ज दिन दोष गणेश जैसे कि चंद्रमा में एक उसमें स्पॉट्स है, यहाँ पे भी दोष है। कौन सा दोष है? कौन सा दोष है? एको ही दोष हो। हिमालय की क्या कमी? सब कुछ अच्छा है, हिमालय में एक समस्या है, एक कमी। क्या क्या भाई? बर्फ से ढक गया है कुछ ऐसा। हाँ, स्नो। Too much of snow. व्यासयुक्तेन प्रचार चक्षुषो किरातार्जुन न मंचनीया प्रभो न जीवी कृत प्रणामस्य। Again from Kiratharjuna. Okay, so there is a saying, nahi priyam pravaktum ichhanti mrishahiteshina. We discussed about in giving class. नहीं प्रियम प्रवक्तु, जो आपके मित्र होते हैं, जो आपके भला चाहते हैं, वो आपके लिए प्रिय वचन बोले, ऐसा वो नहीं सोचते। हरी हरी बोलते आपको अच्छा लगे चाहे बुरा। नेक्स्ट वन, अनेजदेकं वनस्पतियो दैवदेवा आपवत् पूर्वमर्षत् तद्धावतु ईशा यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ गीता अस्त्रपूर्णमुक्तिनां कृशामः। Sita, the quality of Sita, when Hanuman sees the Sita, Astrapurna Mukundina, Astrapurna, आँखों में आंसू, नहीं, तुमली का तुम, ध्यान में, बड़े ही दुख, ही स्थिति। संतप्तानाम, next 7th number, संतप्तानाम त्वमसि शरणं तत्पवयोद प्रियायाः मेघदूतम् संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषित गंतव्या ते। कहा जाना है? वसति अलका, अलका नाम की वस्ती है, देश है। नाम यक्षेश्वराणाम बाह्योद्यान स्थित हर से चंद्रिका धूत हर गया। मेघ को दूत बना करके उसको कहता है कि कहाँ जाना है? मेरे संदेशम में हर, मेरा जो संदेश है उसका लेकर के जाओ। कहाँ जाना है? अलका नाम। निश्वनी यदा किंचित अज्ञो हम दीपैव मदान्धः समो। जब मैं थोड़ा सा जानता था तो मदान्ध हो गया। अधजल गगरी छलकत जाए। जब मैं ज्ञानी लोगों के साथ बैठा, पढ़ा लिखा, तब पता चला कि आई डोंट नो एनीथिंग। तदा मूर्ख अस्मि इति जर इव मदो में गतः। मैं तो मूर्ख। नेक्स्ट राम शुक्लाशोपदेश तात चंद्रापीठ, हे पुत्र चंद्रापीठ, विदित वेदित अभ्यस, तुम सारी चीजें जानते हो। अधीत शास्त्र से
न अल्पम अपि उपतिष्ठव्यम् केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्य रत्नालोकोच्छेद्य प्रदीप प्रभापने अति गहनम तमो यौवन प्रभम। इतना ही ये युवावस्था जो होती है इतनी खतरनाक। उसके बाद फिर डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, संबंधी राजमित्तेन महान प्रहर्ष स्मृत्वा पुनर् कहाँ से षष्ठम, जब उनके पिता को पता चलता है कि वासुदत्ता के पिता की मृत्यु हो गई तो न्यूज भिजवाते हैं कि नहीं, वासुदत्ता के बारे में ऐसा सुन करेंगे अच्छा नहीं। यस्य त्रया व्रण विरोपणम इंदुदेना, कौन? शकुंतला। टू होम, कहते हैं जिस मृग को तुमने अपना पुत्र माना था, जिसको तुमने पाला था, उसका मुख जब चोट लग गया था तो तुमने इंगुदी का तेल लगा करके उसको बड़ा किया था। तो उस वही पुत्र जो है तुम्हें तुम्हारा मार्ग रोक रहा है, तुम्हें जाने नहीं दे रहा। अभी क्या तुम चतुर्थ। नेक्स्ट, यम की है क्या है? सीता क्या है? लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी है। अयम बाहु कंठे शिश्र मसृणो मौक्ति का सरा के मस्यानम प्रेय, यदि परमशय चली जाएगी तो ये मेरे हाथ में। ये आपने कितने आनंद से सुना। ये स्थिति कहाँ की है? उत्तराचरितम। सो in second paper all the there is no any new question, so we don't have to worry about that. In first paper you will see some of the new question and some of the a question we don't have to go, आपको पीछे निकलना है। जो जनरल तरीके से आपने पढ़ा है, जाना है, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। Is there any question you want to ask? Any question here? Overall, we can say the fixed syllabus is here, and they are generally related to what the syllabus and what we provide, what we discuss in our class. So you don't have to. बस आपको टेंशन क्या है? You have to write, do homework. एटलीस्ट एक स्टोरी अगर संस्कृत राइटिंग ही है, अगर आपने सीख लिया, मैं पहले ही बताया, यदि आप 4 सीढ़ी चल चुके हैं तो उससे नीचे मत जाइए, कम से कम 5वें पे चढ़ने का प्रयास। जो आपने पढ़ा है उसकी फिर उसको भूल जाए, उसको एटलीस्ट रिटेन की। और ये आपका व्याकरण का और ये सब देख करके लगा कि आप कितना रिटेन कर रहे हैं। कुछ एक बच्चों को तो कह सकता हूँ कि हाँ मेहनत, और ज्यादातर लोगों से उम्मीद उतनी नहीं हो पाई पूरी। ठीक है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस मैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो यू हैव डन फैंटास्टिक, बट you have to do more. You have to write stories. You have to write, do homework, do previous year also. ठीक है? Any question here? No? No? So we will end here. In next class, we will do regular class in evening and morning. You can reach these videos on YouTube also after some time. This year, no, not after. Ganesh. Sir, last class you had told that some sutras for homework, Samaz sutras. Yes. We didn't get some 4. That is possible. You didn't written. No, I will discuss on that in next class. No? Next class, or when we got time, I will discuss that, and you can write there. Okay. So just थोड़ा सा इसमें स्पेस छोड़ दीजिए,
So we'll discuss on it. Okay, sir. No. Any question? No?